ناظرین آداب، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں فیاض احمد فیاض۔ پہلے سرخیاں۔ لیفٹیننٹ گورنر نے سکاسٹ جموں میں 2 روزہ انوویٹو فارمرز کانفرنس کا کیا افتتاح۔ جموں، کوٹھوا اور سانبا کے 43 گاؤں کو انٹرنیشنل بارڈر ریزرویشن کے تحت نوٹیفائی کرنے کا حکم نامہ جاری۔ وزیر اعظم نے ملک میں کووڈ کی صورتحال سے بہتر طور نمٹنے پر کیا اطمینان کا اظہار۔ کہا بھارت کے طور طریقوں کی دنیا میں کوئی مثال نہیں۔ اور کشمیر وادی کے 3 اضلاع بانڈی پورہ، شوپیاں اور اننت ناگ میں برڈ فلو کی تصدیق۔ انفیکشن والے علاقوں میں سخت چوکسی برتنے کی ہدایت۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج سکاسٹ جموں میں 2 دن تک چلنے والی انوویٹو فارمرز کانفرنس کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ مذکورہ کانفرنس کسانوں کو ایک خصوصی پلیٹ فارم مہیا کرائے گا جس میں کسان اپنے خیالات، اپنے احساسات اور اپنے تجربات کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے اس موقع پر یونیورسٹی احاطے میں کھیل کود کی سہولیات فراہم کرنے سے متعلق عمارت اور کمیونٹی پارک کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر ایل جی نے ترقی پسند کسانوں کی طرف سے لگائے گئے سٹالوں کا بھی معائنہ کیا اور ان کی طرف سے لکھی گئی کامیابی کی کہانیوں کے بارے میں بھی تفصیلات حاصل کی۔ لیفٹیننٹ گورنر نے پدم شری انعام یافتہ ترقی پسند کسانوں سے بھی تبادلہ خیال کیا۔ جموں، کوٹھوا اور سانبا کے 43 گاؤں کو انٹرنیشنل بارڈر ریزرویشن کے فوائد حاصل کرنے کے لیے سرکاری طور نوٹیفائی کیا گیا ہے۔ یہ حکم نامہ گزشتہ سال عوامی ملاقات میں ایل جی کی طرف سے کیے گئے وعدے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے جاری کیا گیا۔ سرکاری حکم نامے کے مطابق جموں کشمیر انتظامیہ نے ڈویژنل کمشنر جموں کی طرف سے پیش کی گئی ریکمنڈیشنز کے بعد یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سرکار نے کووڈ 19 کے حالات کے دوران مختصر عرصے میں صحت سے متعلق ایک مضبوط اور جامع بنیادی ڈھانچہ قائم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار اور نجی شعبے کی مربوط کوششوں کے نتیجے میں جانچ کے لیے لیبارٹریوں کا جامع جال بچھا دیا گیا جن سے کورونا وائرس سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے مدد ملی۔ اس خبر کو مکمل کرتے ہیں وقفے کے بعد۔ آج تو پارٹی چاہیے۔ چیمپئن کے ساتھ سیلفی لیں گے۔ آئیڈیا، یہی کرتے ہیں پارٹی۔ پیزا پارٹی۔ یہ چل اپنا کارڈ اور پن دے۔ میرے کارڈ کی ڈیٹیلز میں خود ہی ڈالوں گی۔ RBI کہتا ہے اپنا پن، OTP، CVV یا انٹرنیٹ بینکنگ پاسورڈ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ آن لائن بینکنگ صرف اپنے کمپیوٹر، موبائل اور سیکیور نیٹ ورک سے کریں۔ بائی گرلز، کہاں جا رہی ہے؟ سنا نہیں، نو شیئرنگ۔ RBI کہتا ہے جانکار بنیے، سترک رہیے۔ آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ وزیر اعظم نے یہ باتیں آج صحت سے متعلق درخشاں شعبے کے موضوع پر ایک ویبنار میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ بجٹ میں صحت کے شعبے کے لیے جتنی رقم رکھی گئی ہے ماضی میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں کووڈ 19 جیسی وبا سے مؤثر طور نمٹنے کے لیے صحت کے بنیادی ڈھانچے کے شعبے کو مستحکم کرنا ضروری ہے۔ جموں کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 94 مزید مثبت کیس درج کیے گئے جن میں سے کشمیر ڈویژن سے 72 اور جموں ڈویژن سے 22 مریض شامل ہیں۔ میڈیا بلیٹن کے مطابق 62 مریضوں کو شفایاب ہونے کے بعد مختلف اسپتالوں سے رخصت کیا گیا۔ اس طرح سے جموں کشمیر میں اب 766 ایکٹیو معاملات ہیں۔ اسکولی تعلیم محکمے نے 1 مارچ سے کشمیر ڈویژن اور جموں کے سرمائی زون کے تحت آنے والے اسکولوں کو کھولنے کا حکم دیا ہے۔ حکم نامے کے مطابق 9ویں سے لے کر 12ویں جماعت تک کے اسکول 1 مارچ سے دوبارہ کھلیں گے جبکہ 8ویں جماعت تک کے اسکولوں کے بچے 8 مارچ سے اسکول جائیں گے۔ البتہ 8ویں جماعت تک کے اسکولوں کے اساتذہ کو 1 مارچ سے تیاریوں کے لیے حاضر ہونے کو کہا گیا ہے۔ اس دوران تمام اسکولوں سے کہا گیا ہے کہ وہ وضع کردہ ضوابط پر پوری طرح عمل کریں۔ واضح رہے جموں ڈویژن کے گرمائی زون کے تحت آنے والے اسکول رواں مہینے کی 1 تاریخ سے پہلے ہی کھل چکے ہیں۔ جموں کشمیر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پنکج متھل نے آج ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس سری نگر کا تفصیلی دورہ کیا۔ دورے کے دوران چیف جسٹس نے جج صاحبان اور وکلاء برادری سے الگ الگ میٹنگ منعقد کی۔ اس سے پہلے چیف جسٹس کا ڈسٹرکٹ کورٹ پہنچنے پر جسٹس علی محمد ماگرے اور دیگر ججز نے ان کا والہانہ استقبال کیا اور انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ واضح رہی کہ جسٹس متھل کا یہ چیف جسٹس منتخب ہونے کے بعد سری نگر کا پہلا دورہ ہے۔ ڈپٹی کمشنر گاندربل شفقت اقبال نے آج لوگوں کو کسی بھی ہنگامی حالت کے دوران مدد بہم رکھنے کے لیے اطلاع ایپ لانچ کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ مستقبل قریب میں یہ ایپ IMDAD کے ساتھ مربوط کی جائے گی جس سے عام لوگوں کو ڈیجیٹائز عمل کے ذریعے فوری اور شفاف طریقے سے مدد مل سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی شخص یہ ایپ گوگل پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے۔
डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग अंशुल गर्ग ने आज अफसरान की एक मीटिंग के दौरान मरगन और सिंथन टॉप सड़कों को खोलने के लिए किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान बताया गया कि गावरन से मरगन टॉप तक जो 24 किलोमीटर की शाहराह आती है उसमें से अब तक 8 किलोमीटर तक की सड़क पर बर्फ हटा दी गई है। डिप्टी कमिश्नर ने PMGSY और मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिवीजन के आला अफसरान को हिदायत दी कि वो मज़कूरा शाहराह को जल्द से जल्द काबिल आमद रफ्त बनाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मरकजी हुकूमत से अपील की है कि वो बरसगीर में अमन व अमान का माहौल कायम करने के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इन बातों का इजहार जम्मू के रघुनाथ बाजार के दौरे के दौरान नामानिगारों से बात करते हुए किया। नामानिगारों के कई सवालों का जवाब देते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जो लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि कश्मीर में मिलिटेंसी का पूरी तरह खात्मा हुआ है, तो वैसे हालात अभी तक जमीन पर नजर नहीं आ रहे हैं। शोपियां के वड़ीपोरा गांव में बर्ड फ्लू की तस्दीक होने के बाद जिला इंतजामिया ने आसपास के इलाकों समेत मज़कूरा गांव में दफ़ा 144 नाफिज करके सख्त पाबंदियों का ऐलान किया है। डिप्टी कमिश्नर सचिन कुमार वेश ने तफसीलात बताते हुए कहा कि वड़ीपोरा गांव से जिन मुर्दा काऊ के सैंपल लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेजे गए थे उनमें बर्ड फ्लू की बीमारी पाई गई है, जिसकी बुनियाद पर इस गांव के इर्द गिर्द 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले इलाके को इन्फेक्टेड जोन जबकि 10 किलोमीटर तक आने वाले इलाके को अलर्ट जोन करार दिया गया है। इस बुनियाद पर अब इस गांव से कोई भी पोल्ट्री परिंदा बाहर ले जाने पर पूरी तरह से पाबंदी आयद कर दी गई है। इस दौरान अनंतनाग और शोपियां के बाद वादी के एक और जिले से बर्ड फ्लू की तस्दीक हो गई है। तफसीलात के मुताबिक गीज नामी मकामी परिंदों से हासिल किए गए नमूनों में H5N8 नामी एवियन इन्फ्लुएंजा पाया गया है और सदरकोट पाइन के इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने मज़कूरा गांव को इन्फेक्टेड जोन और 10 किलोमीटर के अहाते को सर्वेलेंस जोन में रखा गया है। तहसीलदार अजस और दीगर मुतल्लिका अफसरान को ताकीद की गई है कि वो इस इलाके से किसी किस्म के पोल्ट्री परिंदों या पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को लाने ले जाने की इजाज़त न दें। ट्रेडर्स फेडरेशन बारामूला के एक वफद ने आज बारामूला के डिप्टी कमिश्नर एजाज असद के साथ मुलाकात की और उन्हें अपने मसाइल से आगाह किया। वफद ने मौसूफ को इस बात की अपील की कि वो छापड़ी फरोशों को मेन मार्केट से हटाकर किसी मुनासिब जगह पर कारोबारी सरगर्मियां जारी रखने की इजाज़त फराहम करें ताकि बाजार में खरीदारों और ट्रांसपोर्टरों की बिला खलल आवाजाही यकीनी बन सके। महकमे ज़राअत की जानिब से आज पुलवामा ज़िले के निकस और हाल देहात में किसानों के लिए जानकारी और तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया। महकमे ज़राअत की तरफ से मुनक्किद किए गए इस जानकारी कैंप का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघव लांगर ने किया। इस मौके पर मौजूद किसानों से बात करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने किसानों से कहा कि वो सॉइल हेल्थ कार्ड हासिल करने के लिए महकमे ज़राअत से रब्ता करें, क्योंकि इस कार्ड की बदौलत हर एक किसान को अपनी ज़मीन की ताकत के बारे में मालूमात हासिल होंगी। डिप्टी कमिश्नर बड़गाम शहबाज अहमद मिर्जा और डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर डॉक्टर जियान इत्तू ने आज सयाहती मकाम दौदपत्री का दौरा किया और वहां आने वाले सयाहती सीजन की तैयारियों के लिए किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर एक मीटिंग भी तलब की गई जिसमें मौजूद अफसरान से ताकीद की गई कि वो सयाहती मकाम को मजीद जाज़िब नज़र बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करें ताकि यहाँ आने वाले सयाहों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इस दौरान डायरेक्टर टूरिज्म ने बताया कि महकमे सयाहत ज़िला इंतजामिया बड़गाम के इश्तराक से दूधपथरी में 6 मार्च से 3 रोज़ा टूरिज्म फेस्टिवल मुनक्किद कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सयाहों को इस जानिब माइल किया जा सके। हंदवाड़ा में आज 2 सरकारी मुलाजमीन को अपनी हैसियत का नाजायज़ इस्तेमाल करने पर फिलहाल अटैच करने का हुक्म जारी किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट कफाड़ा के मुताबिक ADC ऑफिस हंदवाड़ा में बतौर जूनियर असिस्टेंट काम करने वाले फिरदौस अहमद डार और जड़ियो ऑफिस लंगेट में बिलाल अहमद डार बतौर जूनियर असिस्टेंट काम कर रहे थे के खिलाफ लगातार अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करने के बारे में शिकायत मौसूल हो रही थी। अगरचे इन दोनों मुलाजमीन को कई बार इस बारे में आगाह भी किया गया था, लेकिन सरकारी हुक्मनामे को बराए तार रखकर दोनों मुलाजमीन अवामी कामों में रखना डालते रहे, जिसकी बुनियाद पर जिला मजिस्ट्रेट ने दोनों को मुअत्तल करके फिलहाल अटैच करने का हुक्म दिया है और इस बारे में मजीद तहकीकात के लिए इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। अखनूर सेक्टर के फायरिंग रेंज में हादसाती तौर गोली चलने की वजह से फौज का एक जवान गुनर साया को शदीद जख्मी हो गया, जो अस्पताल में इलाज के दौरान जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। दिफाई तर्जुमान के मुताबिक आज सुबह 10:30 बजे ट्रेनिंग सेशन के दौरान यह हादसा पेश आया। ट्रैफिक पुलिस सिटी श्रीनगर ने उन तमाम गाड़ी चलाने वालों को जो अपनी गाड़ियों में स्कूल बच्चों को
स्कूल लाने और ले जाने का काम करते हैं को इंतबाह किया है कि वो अपनी गाड़ियों में किसी भी तरह का LPG किट लगाने से पूरी तरह से परहेज करें। बसूरत दीगर उनकी गाड़ियों को मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत सीज किया जाएगा। इसी तरह तमाम वालिदैन और स्कूल मुंतजमीन से कहा गया है कि वो इस तरह की खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं। कोटवा सड़क हादसे में फौत हुए इस्लामिक स्कॉलर और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सेक्रेटरी मंजूर अहमद किरमानी की नमाज जनाजा में आज हजारों लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर कई समाजी और दीनी अंजुमनों से वाबस्ता शख्सियात ने कहा कि मंजूर अहमद किरमानी की वफात जम्मू कश्मीर उम्मत मुस्लिमा बिलखसूस जिला कुपवाड़ा के लिए एक बड़ा नुकसान है। जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सेक्रेटरी मंजूर अहमद किरमानी की सड़क हादसे में मौत वाक़ा होने पर सदमे का इजहार किया है और कहा है कि मौलवी मंजूर अहमद का इंतकाल एक बड़ा नुकसान है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने मारूफ आलिम दीन मंजूर अहमद किरमानी के सड़क हादसे में मौत वाक़ा होने पर गहरे सदमे का इजहार किया है। CPIM के सीनियर लीडर MY तारिगामी ने भी मंजूर अहमद किरमानी की मौत पर शदीद रंजो गम का इजहार किया है। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर शेख आशिक ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर इंतजामिया से अपील की है कि वो ट्रांसपोर्टरों के मुतालिबात को हल करने के लिए ठोस इकदाम करें, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से कोविड और दीगर चैलेंजेस का सामना करते हुए ट्रांसपोर्ट बिरादरी के लोग बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो रहे हैं। इसलिए इंतजामिया इनके मुतालिबात हल करने की जानिब कोशिश करे ताकि आने वाले सयाहती सीज़न में उन्हें दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की तरफ से आज नई नस्ल के उन्वान पर एक रोज़ा मुशायरा मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत नामवर शायर और अदीब हसन अंजर ने अंजाम दी, जबकि ऐवान सदारत में डॉक्टर निगहत नज़र बहैसियत मेहमान खुसूसी मौजूद रहीं। मुशायरे की नज़ामत गुलजार जाफर ने अंजाम दी और शिराजा उर्दू के मुदीर सलीम सालिक ने मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए कहा कि एकेडमी नई नस्ल की आबियारी के लिए मुख्तलिफ अदबी तकारीब मुनक्किद करने की जिम्मेदारी निभा रही है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। इंसान के पास हिम्मत, जज्बा और लगन हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वेस्ट अनंतनाग से ताल्लुक़ रखने वाले 23 साल के सायर अब्दुल्ला ने 11 बरस की उम्र में ही एक हादसे में अपना दाया बाजू खो दिया, लेकिन जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उनका ड्राइविंग के साथ लगाव बढ़ गया और वो इस वक्त कश्मीर ऑफ रोड क्लब के मेंबर हैं। साहिर का कहना है कि हादसात ज़िंदगी का हिस्सा है और इनसे उभरने का नाम ही जीवन है। उसके बाद बचपन से मेरे को गाड़ी चलाने का शौक़ था। कोई भी डिसेबिलिटी इंसान को अपने शौक़ पूरा करने से नहीं रोक सकती। बस इंसान को करेज और कॉन्फिडेंस होना चाहिए और सपोर्ट, सोसाइटी भी सपोर्ट करनी चाहिए ताकि वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल करे। बस अपना हौसला बुलंद रखना है और हिम्मत से आगे बढ़ना है। अब मौसम से मुत्तलिक जानकारी। बाकी मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 15.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 27.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि वहाँ गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 15.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन ख़त्म हुआ चाहता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉगिन कर सकते हैं। इस वक्त इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।